गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने कल लेसन स्टार्ट किया था, वी विल रीड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, है ना। सो yesterday we started the chapter pigeons at daybreak, जिसमें हमने बात की थी regarding an old couple, Mr. and Mrs. Basu, and who are living in Daryaganj, Delhi, and they are having a very good time. So the chapter deals with their daily life and what happens in their day-to-day life. Okay, so one of the problem faced by Mr. Basu is that he cannot read. That's why every day he has to wait for his wife to read out the newspaper for him. And then there are few other things as well that happens in the play, that when she starts reading, then there are certain news which creates problem, and one of the news that create problem, or you can say altercation between them, is a blue bell menace in Delhi airport can be solved by narcotic drugs. So this headlines create problem or confusion between Mr. and Mrs. Basu. Mr. Basu believes that these blue bulls are now extinct, so they can't be. There must be some other word, typing error or something else. Okay. So, and as they move forward, then one news which create problem to Mr. Basu is that electricity problem. Said that there will not be any electricity in Daryaganj and Kashmiri Gate area from 8 p.m. to 6 a.m. So this news create lots of problem to Mr. Basu as he starts getting nervous and he starts gasping for breath and so on and so forth. So after this, what will happen? I will bring you your inhaler. Mrs. Basu says that she will bring him his inhaler. Don't get worried, just don't get worried. परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. She will bring inhaler to Mr. Basu. She told him and bustled off to find his inhaler and cortisone. वो जल्दी से गई और उसका जो है इनहेलर लेने के लिए घर के अंदर गई. When she held them out to him, जैसे ही उन्होंने वो इनहेलर उनको दिया, he lowered his head into the inhaler like a dying man at the one straw left. और उन्होंने इस तरह से उसको पकड़ा जैसे कि वो उनकी आखिरी सांस चल रही हो. He grasped it with frantic hands. ना ऐसे तड़पते हुए हाथों से उन्होंने वो पकड़ा. Almost clawing it, और ऐसे झपट्टा जैसे मारते हैं उस तरह से उसने ये काम कर लिया. She shook her head watching him. उन्होंने अपना सर हिलाया उनको देखते हुए. Why do you let yourself get so upset? तुम अपने आप को इतना परेशान क्यों करते हो? She asked, cursing herself for having read out that particular piece of news. और वो अपने आप को कर्स करने लग गई कि क्यों उसने ये न्यूज़ अपने पति को पढ़ के सुनाई. It won't be so bad. वो इतना ख़राब नहीं होगा. Many people in the city sleep without electric fans. बहुत सारे लोग जो हैं बिजली के बिना सोते हैं. हम भी सो जाएंगे, हम भी मैनेज कर लेंगे. You will manage, he spat at her, but I, तुम मैनेज कर लोगी लेकिन मेरा क्या होगा, है ना. I will be at risk. It will be problem for Mr. Basu. There was no soothing him now. She knew how rapidly he would advance from imagined breathlessness into a first frightening stage of a full-blown attack of asthma. उनको पता है कि वो किस तरह से जो है एक imagined breathlessness से किस तरह से जो है अस्थमा के पहले अटैक तक उनके हस्बैंड बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं. His chest was already heaving. He imagined there was no oxygen left for him to breathe. उनकी चेस्ट जो है वो अभी भी जो है हीव कर रही थी और उनको ये लग रहा था कि उनके शरीर में बहुत कम ऑक्सीजन लेफ्ट बची हुई है और उससे उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है. दैट हिज लंग्स हैड कोलैप्स्ड एंड कुड नॉट टेक एनी एयर. उनको लग रहा था कि उनके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं. एंड कुड नॉट टेक एनी, और वो जो है अंदर जो है हवा नहीं खींच पा रहे हैं.
He stared up at the strings of washing that hung from end to end of balcony. वो ऊपर देखने लगे, वो जो बालकनी में उनके घर में जो तारे बंधी हुई थी जिन पे वो कपड़े सुखाते हैं उनकी तरफ वो देखने लग गए. The overflow of furniture that cluttered it, the listless parrots, और जो parrots की तरफ देखने लग गए. The view of all other crowded washing hung balconies up and down a length of the road and felt there was no oxygen. चारों तरफ वो देखने लगे और उनको लगा कि कहीं भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में. Contrary to what probably our yoga guru has earlier mentioned, that in our society there is abundant oxygen left, but this person is not able to find any oxygen. Stay out here on the balcony, है ना, यहीं पे रहो balcony में. It's a little cooler than inside, यहाँ पे थोड़ी ठंडक है अंदर के बजाय. His wife said calmly and left him to go about her work. उनकी वाइफ ने ये बात उनसे कही और चुपचाप अपने काम के लिए वो निकल गई. But she did it absently. और वो जो अब सारा काम जो है बिना किसी इच्छा के कर रही थी, उनका ध्यान कहीं और था. Normally she would have relished bargaining with the fish seller who comes to the, है ना, किसी और दिन वो बहुत इंजॉय करती थी बार्गेन करना, मोल भाव करना फिश सेलर से जो उनके दरवाजे पे हर रोज़ आता था. with a Beckety, some whiskered black river fish and little squirming hill of pale pink prawns in his flat basket. वो मछली, prawns और सारी चीज़ें भी अपनी एक बास्केट में भर के लाता था. But today she made her purchases and paid him off rather quickly. उन्हें जल्दी से जो है मछलियाँ खरीदी और जल्दी से उनको रवाना कर दिया. She was in a hurry to return to the balcony. और वो बहुत ही तेज़ी में थी कि बालकनी में जल्दी से जल्दी पहुँच जाए. All right, she asked, looking down at her husband sunk into the heap on his chair. तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा सब ठीक है, जो कि उनके हस्बैंड जो हैं चेयर में एक तरह से वो उसमें डूब गए थे या फिर उसमें एकदम से अंदर चले गए थे. शेकिंग विद द एफर्ट टू सक इन एयर, वो जो हिल रहे थे कि किस तरह से वो जो है हवा को किसी तरह से अपने अंदर ले सकें. His lips tightened and whitened in silent reply. उनके होठ जो हैं वो टाइट हो गए थे और सफ़ेद हो गए थे और उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था. She sighed and went away to sort out spices in the kitchen. वो चुपचाप अंदर चली गई और वहाँ पे उन्होंने खाना बनाने के लिए वो अपने मसाले जो हैं ढूंढने लग गई. To pour them out of large containers into small containers to fill those that were empty. वो कुछ काम करने लग गई किचन में जाके. That those were full, giving everything that came her way a little loving polish with the end of her sari, and it was something she loved to do. और वो जो है सारे बर्तन को जो है साफ़ करती हैं और जो भी उनके कंटेनर्स हैं उनको भी साफ़ करती हैं, जिसको वो इन्जॉय करती हैं. रोज़ अपने साड़ी के पल्लू से वो उनको साफ़ करती थी. शी वॉज़ वरीड अबाउट हर हस्बैंड, और साथ में वो अपने हस्बैंड को लेके काफ़ी परेशान हैं. फुलिश एंड अनरीजनेबल एज शी सीम टू हर इन हिज सिकनेस. और उनके पति जो है उनको एक बेवकूफ़ और बेदिमाग वाले लोग लग रहे थे बीमारी में. शी कुड नॉट क्वाइट लीव हिम टू हिज एगनी. वो उनको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे इस प्रॉब्लम में अकेले. वेदर रियल और इमेजिन्ड, उनको पता नहीं कि ये उनकी रियल प्रॉब्लम है या फिर इमेजिन्ड है. When the postman brought them a letter from their son in Bhilai, she read out to him the boy's report on his work in the steel mills. और इसी के साथ उनके घर पे एक चिट्ठी आती है जो उनके बेटे की है, जो भिलाई में काम करता है, और वो अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताता है कि कितनी उसने प्रोग्रेस कर ली है. The father said nothing but seemed calmer. अब जो फादर है वो बिल्कुल चुप हो गए हैं. And she was able after that to make him eat a little rice and fish. और उन्होंने जो है कोशिश की कि उनके हस्बैंड जो है थोड़े चावल और फिश खा लें. वेरी लाइटली प्रिपेयर्ड जस्ट एज द डॉक्टर प्रेस्क्राइब, बहुत ही सादा खाना जैसे कि डॉक्टर ने उनको बोला था. लाई डाउन नाउ, लेट जाओ, शी सेड, सकिंग एट द फिश बोन एज शी रिमूव द डिशेज फ्रॉम द टेबल. साथ में वो खाना खा रही थी और इसके साथ उन्होंने हस्बैंड को बोला कि आप रेस्ट कर लीजिए. एंड शी रिमूव द डिशेज फ्रॉम द टेबल, और उन्होंने टेबल से
जो है खाने की जो बर्तन है वो हटाने लग गई। इट्स टू हॉट आउट ऑन द बालकनी, टेक सम रेस्ट। बालकनी में काफ़ी गर्मी हो गई है, इसीलिए आप जो है अंदर चल के थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट, ही स्नैप्ड एट हर, आराम। बट सफल्ड ऑफ इनटू द बेडरूम एंड अलाउड हर टू मेक अप हिज बेड। और जल्दी ही वो अंदर चले गए और अपनी वाइफ को उन्होंने अलाउ किया कि उनके लिए बिस्तर सजा दें या बिस्तर बना दें। विद ऑल द पिलोज एंड बोल्स्टर दैट केप्ट हिम इन ऑलमोस्ट सिटिंग पोजिशन। उनके लिए उन्होंने जो है गद्दे और मसंद लगा दिए इस तरह से जैसे कि वो आराम से एक सिटिंग पोजीशन में बैठ सकें। ही शिफ्टेड एंड ग्रून्ड एज शी हीप्ड अप अ बोल्स्टर हेयर। और वो जैसे ही बैठे और जो वो करहाने लगे, जैसे ही वो बोल्स्टर मसंद को इधर से उधर करने लगी। फ्लैटेंड अ कुशन देयर, सेड ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप। तो उन्होंने कहा कि कुशन यहाँ से हटा दो, उनको नींद नहीं आएगी। बट शी थॉट ही did for she kept an eye on him while she leafed through a heap of film and women's magazine on her side of the bed। और जब वो भी बेड पे बैठ गई और धीरे धीरे वो एक तरफ तो मैगजीन पढ़ रही थी, दूसरी तरफ अपने हस्बैंड को भी देख रही थी कि उन्हें नींद आई या नहीं आई। And thought his eyes were closed genuinely in sleep, that his breathing was almost as regular as the slow circling of the electric fan above them। वो देख रही थी कि उनके हस्बैंड की जो सांस लेने की जो तरीका है वो आरामदायक है या नहीं है, वो नॉर्मल ले रहे हैं या नहीं ले रहे, और जिस तरह से उनके इलेक्ट्रिक फैन आराम से चल रहा है उसी हिसाब से उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही। The fan needed oiling. It made a disturbing clicking sound with every revolution। और वो सोचने लगी कि जो उनका पंखा है उसको भी अब थोड़ा सा ऑयलिंग और ग्रीसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब भी एक चक्कर पूरा करता है तो उसमें किसी तरह की उसमें आवाज़ आती है। बट who was there to climb up to it and do the oiling and cleaning। लेकिन वो सोचने लगी कि हम दोनों में से कौन ऊपर चढ़ेगा और जो है उसमें जो है उसकी ऑयलिंग करेगा। नॉट सो ईजी टू गेट दीज थिंग्स डन। ये काम करना इतना भी आसान नहीं है। When one's husband is old and ill, जब किसी के हस्बैंड जो है काफ़ी बीमार हो जाएं, she thought, she yawned, she rolled over। उन्होंने सोचा, उन्होंने उबासी ली और उसके साथ वो रोल्ड ओवर हो गई, दूसरी तरफ लेट गई। When she brought him his afternoon tea, she asked, had a good sleep। जब उन्होंने वो आफ्टरनून में जो है जो उनकी चाय लेके आई तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको अच्छी नींद आई। Which annoyed him, जिससे कि उनको गुस्सा आ गया। Never slept at all, बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे। He snapped, उन्होंने जोर देके ये बात कही। Taking the cup from her, उसे जो है चाय का कप लेते हुए उन्होंने कहा। Hands in spilling some tea। Hands, और जैसे उन्होंने कप उनसे खीला कप लिया अपनी वाइफ से तो उनको थोड़ा सा चाय उनके हाथ पे भी गिर गई। How can one sleep if one can't breathe। कोई कैसे सो सकता है जब किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। He growled, उसने गुर्राते हुए कहा। And she turned away with a little smile at his stubbornness। और वो उसके जिद्दी स्वर को देखते हुए ही अपनी तरफ और एक दूसरी तरफ मुड़ गई एक स्माइल के साथ। But later that evening he was genuinely ill। और शाम होते होते उनकी तबीयत नासाज हो गई। Choked in a panic at his inability to breathe। और उनको जो है अब सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी as well as at the prospect of the hot night without a fan। ये सोच कर कि पूरी रात वो कैसे गुजारेंगे बिना पंखे के। What will I do, मैं क्या करूँगा। He kept moaning in between violent struggles for air that shook his body and left it limp। What will I do, मैं क्या करूँगा ये सोच के वो परेशान हो जाते। I will tell you, she suddenly answered and wiped the perspiration from her face in relief। मैं तुम्हें बताती हूँ, उन्होंने कहा उनके माथे से पसीना पोंछते हुए। I will have you bed taken up on the terrace। मैं तुम्हारा बेड जो है बिस्तरा जो है छत पे ले जाऊंगी। I can call बुलू, मैं बुलू को बुला लेती हूँ। From the next door
जो कि अगले घर में रहता है, और वो ये सारा काम कर देगा। यू कैन स्लीप आउट इन द ओपन एयर टुनाइट, तुम जो है चुपचाप जो है आराम से सो सकते हो। यू कैन स्लीप आउट इन द ओपन एयर टुनाइट, दैट विल बी नाइस वोंट इट, है ना, वो बहुत ही ठीक होगा। दैट विल डू यू गुड, और वो तुम्हारे लिए बेहतर भी होगा। शी ब्राइटेंड बोथ एट द थॉट ऑफ अ नाइट स्पेंट इन द ओपन एयर, और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि उनको रात को जो है ऊपर सोने का मौका मिलेगा। जस्ट एज दे हैड डन व्हेन दे वर यंगर, जैसा कि वो पहले करते थे जब वो जवान थे। एंड क्लाइंबिंग अप एंड डाउन स्टेयर्स विद नथिंग टू देम, पहले जब वो जवान थे उनके लिए ऊपर चढ़ना उतरना में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती थी। ऑफ कोर्स ओल्ड बासु मेड अ प्रोटेस्ट एंड ग्रेट फस, और जो ओल्ड मिस्टर बासु हैं उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की कि वो ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। कफ्ड एंड स्वेट एंड शुक एंड सेड ही कुड नॉट पॉसिबली मूव इन दिस कंडीशन, उन्होंने कहा कि वो इस कंडीशन में बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा सकते हैं और मूव बाय एनीवन, बट शी इंसिस्टेड इन इग्नोरिंग हिम, वेंट आउट टू मेक द अरेंजमेंट, और वो जो है ये उनकी बात ना सुनते हुए जो है ऊपर चली गई और सारा अरेंजमेंट करने के लिए। बासु हैड नॉट बीन ऑन द टेरेस फॉर ईयर्स, बासु बहुत दिनों से जो है टेरेस पे नहीं गए थे, बहुत सालों से टेरेस पे नहीं गए थे। वाइल हिज वाइफ एंड बुलू लेट हिम अप द स्टेयर्स, जिससे कि उनकी वाइफ ने और बुलू ने वो उनको ऊपर लेके चले गए। हॉलिंग हिम अप, प्रॉपिंग हिम अपराइट बाय देयर शोल्डर्स, उनको जो है ऊपर अपने दोनों बुलू और उनकी वाइफ उनके हाथों को अपने कंधों पे रखते हुए उनको धीरे धीरे ऊपर लेके चले गए। एज दो ही वर सम लाइफलेस बैग, जैसे कि वो कोई एक बिना लाइफलेस कोई बैग हो, उनको खींचते हुए ऊपर लगे। कंटेनिंग समथिंग फ्रेजाइल एंड वैल्यूएबल, और बिल्कुल ही क्या कहते हैं बिल्कुल ही उसकी पूरा ख्याल रखते हुए वो उसको ऊपर ले गए। ऐसी चीज़ जैसे कि कोई बहुत ही फ्रेजाइल कमज़ोर वस्तु है। He tried to think when he had last attempted or achieved what now seemed to be torture, struggle up, वो अभी सोचने लगा कि कब वो आखिरी टाइम था जब उसने ये ऊपर चढ़ने की नौबत उठाई थी। Up the steep concrete steps to the warped green door at the top, जो ऊपर गए थे और जो ऊपर का दरवाज़ा जो ग्रीन कलर का वो खोला था। They had given up sleeping there on summer nights long ago, उन दोनों ने, मिस्टर एंड बासु ने ऊपर सोना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। Not so much on the account of old age, इसलिए नहीं क्योंकि वो बीमार हो गए थे और वीक नीज, और उनकी जो है नी जो है जो घुटने हैं वो कमज़ोर पड़ गए थे। बट बिकॉज ऑफ देयर परपेचुअल कॉरल्स, लेकिन उनका क्या रीज़न था, उनकी लड़ाई हो जाती थी किससे, अपने पड़ोसी से, ऑन द नेक्स्ट टेरेस, जो कि अगली हुई या साथ वाले टेरेस पे थे। सेपरेटेड फ्रॉम देयर्स बाय ओनली अ ब्रोकन वुडन ट्रेलिस, जो कि एक दूसरे के बीच में एक लकड़ी की जो है दीवार के रूप में उनकी बाउंड्री थी। नॉइजी इनकंसिडरेट पीपल, है ना, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे, ऐसे इंसान थे जो उनके पड़ोसी थे। एडिक्टेड टू द रेडियो टर्न ऑन फुल ब्लास्ट, और वो जो है पूरी तेज़ी से क्या बजाते थे, रेडियो चलाते थे। एट टाइम्स द मैन हैड बीन ड्रंक एंड ट्रबल्ड, और कई बार जो वो इंसान है वो जो है नेबर जो है वो शराब पी के जो है आते थे, और ट्रबल्ड एंड अब्यूज्ड हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को जो है गालियाँ देते थे। नाइट आफ्टर नाइट टू एंड अब्यूज्ड हिज वाइफ हु गिव एज गुड एज शी गॉट, और उसकी वाइफ जो है उनसे भी ज़्यादा अच्छी गालियाँ या बुरी गालियाँ उनको देती थी। इट हैज़ बीन इनटॉलरेबल, और ये उनके लिए बहुत ही इनटॉलरेबल हो गया था, असहनीय हो गया था। ऑटिमा हैड अर्ज हर हस्बैंड नाइट आफ्टर नाइट टू प्रोटेस्ट, ऑटिमा ने अपने हस्बैंड को कहा कि वो जाकर दखल दें, इस बात के लिए प्रोटेस्ट करें। When he did, they had almost killed him, जब उन्होंने इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया दोनों ने ही उसको
मिस्टर बासु को, अमूल बासु को मार ही दिया था. एटलीस्ट दे वुड हैव हैड दे मैनेज टू क्रॉस ओवर टू बासूस टेरेस. वो उनको मार ही देते अगर वो उनकी टेरेस की तरफ आ जाते, विच दे वर फिजिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग बाय देयर सन्स एंड डॉटर, जिनको कि उनके बेटे ने और उनकी डॉटर ने रोक लिया था. द नेक्स्ट नाइट दे हैड बीन इवन मोर ऑफेंसिव. अगली रात वो और ज़्यादा हमारे उनकी मिस्टर बासु की तरफ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए. फाइनली द बासूस हैड बीन फोर्स्ड टू गिव इन एंड रिट्रीट डाउन द स्टेयर्स टू स्लीप इन देयर क्लोज एयरलेस रूम. और इसके बाद मिस्टर बासु को ये सोचना पड़ गया, ये डिसीज़न लेना पड़ गया कि अब अपने घर के अंदर सोना ही बेहतर है. एयरलेस रूम, जिस रूम में हवा भी नहीं आती है, वहाँ पे सोना उनकी मजबूरी हो गया. एटलीस्ट इट वॉज अ प्राइवेट देयर. वहाँ पे जो है वो आराम से सो सकते थे क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी. आफ्टर द फर्स्ट फ्यू रेस्टलेस नाइट्स दे वंडर्ड हाउ दे हैड एवर पुट अप विद अ पब्लिक स्लीपिंग आउटडोर्स. और कुछ रातों के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो किस तरह से वो रात को वहाँ पे ऊपर सोते थे. पब्लिक स्लीपिंग आउटडोर्स एंड इट्स डिस्टर्बेंसेस की भी कितने उनको वहाँ पे तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था. न्यूसेंस वो एक प्रॉब्लम ही थी हमारे लिए. एज ओटिमा कॉल्ड इट इन इंग्लिश, थिंकिंग इट्स इफेक्टिव वर्ड. और इंग्लिश में उनको बोला कि ये एक ज़्यादा ही अच्छा शब्द है. दैट हैड नॉट he groaned aloud as they led him up over the last step to the green door. और ये उन्होंने नहीं किया. He groaned aloud as they lead him up over the last step of the green door. That had not. He groaned aloud as they led. और अब जो है वो उनको अपने हस्बैंड को दोबारा से ही ऊपर लेके जा रही थी. Being the last visit he had paid to the rooftop as Bullu kicked open the door. और बुल्लू ने लात मारते हुए दरवाज़ा खोला. Half-witted he may be, he was poorly too and good nature. वो थोड़ा हेल्दी था और साथ में अच्छे स्वभाव का. Like so many half-wits, and the city sky revealed itself in its dirt-swept grays and mauves on the same level with them. Basu recalled how not so many years ago he had taken his daughter Charu's son by the hand to show him the pigeons roasts on so many of the Daryaganj rooftops. और इस तरह मिस्टर बासु सोचने लगे किस तरीके से वो अपनी बेटी के सन को वो छत पे लाए थे एक दिन काफ़ी टाइम पहले, और किस तरह से उन्होंने उनकी पिजन से मुलाकात कराई थी. And pointed out to him the flock of collectors' pigeons like so many silk and ivory fans flirting in the sky. और उन्होंने बताया कि कितने सारे पिजन्स उड़ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने उनकी डिस्क्रिप्शन अपने नाती को दी. The boy had watched in silence. और बेटा जो है पूरा चुपचाप होकर जो उनके नाना उन्हें बता रहे थे उनको सुन रहा था. Holding on to his grandfather's thumb with tense delight. और खुशी में जो अपने ग्रैंडफादर की जो है अंगूठा पकड़ के अंगूठा पकड़ के जो है वो खुशी ये बात सब चीज़ें देख रहा था. द मेमोरी ऑफ इट साइलेंस्ड हिज ग्रोन्स. वो ये सोच, ये याद उनके दर्द को, उनकी आह को कम कर गई. एज दे लोवर्ड हिम ऑन टू द बेड. और जैसे उन्होंने उनको उनके बेड पे छोड़ा या फिर लेटाया. They had earlier carried up spread with his many pillows. और इससे पहले वो जो है बेड, पिलोज, सारी चीज़ ऊपर लेके जा चुके थे. He sat there getting back his breath and thinking of Nikhil. और वो अपनी ब्रेथ को जो है नॉर्मल करने लगे और अपने बेटे निखिल के बारे में सोचने लग गए. When would he see Nikhil again? कब वो निखिल को दोबारा देख पाएंगे? What would he not give to have that child hold his thumb again and go for a walk? और जो है उनको कैसा लगेगा कि वो कब दो अपने बेटे को दोबारा से जो है, या फिर जो शायद जो निखिल है वो उनके नाती का नाम है, कि उनको जो है दोबारा कब जो है वॉक पे ले जाएंगे, कब वो उनका हाथ पकड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पंक्चुअली एट 8 o'clock द इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्विच्ड ऑफ. ठीक 8 बजे
इस मामले में जो है बिजली वाले बिल्कुल पंक्चुअल थे कि उन्होंने बिल्कुल 8 बजे जो है बिजली काट दी। इमीडिएटली सकिंग अप दरियागंज, पूरा दरियागंज जो है अंधेरे में हो गया इनटू अ बॉक्स ऑफ शैडोज, सो दैट द डिस्टेंट ग्लो ऑफ कनॉट प्लेस स्टिल लिट अप वाज एम्फसाइज्ड। और थोड़ी दूर पर जो कनॉट प्लेस है, जहाँ पर जो मार्केट की जगह है, वो पूरी तरह से रोशन था। द हॉराइजन्स वर इल्यूमिनेटेड एज बाय अ फायर रोस्टेड रेड, और वो ऐसा लग रहा था रात को जैसे कि कहीं आग लग गई हो और लालिमा उसकी फैल रही हो। द ट्रैफिक मेड लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ लाइट अप एंड डाउन, और जो ट्रैफिक चल रहा था उससे जो एक रोशनी जा रही थी अप एंड डाउन हो रही थी। लाइंग बैक बासु सॉ द डूम ऑफ द स्काई एज एब्सोल्युटली इम्पेनेट्रेबल, और लेटे हुए मिस्टर बासु ने देखा कि जो स्काई है वो बिल्कुल इसमें भेद छेद नहीं किया जा सकता। श्राउडेड विद समर डस्ट, और वो जो है पूरा ही आसमान में जो है रेत ही रेत या आंधी का जो रेत होता है वो ही फैला हुआ है। एंड इट सीम टू हिम द एज एयरलेस एज द रूम बिलो, और उसको जैसे कि नीचे था वैसे ही उसको ऊपर लगा। निखिल निखिल ही वेप्ट, और निखिल निखिल कह के वो रोने लगे। एज दो द चाइल्ड माइट हैव हेल्प, कि ये सोच के कि वो जो चाइल्ड है वो उनकी मदद करेगा। नोर कुड ही फाइंड एनी ईज एनी कम्फर्ट ऑन दैट अनअकस्टम्ड स्ट्रिंग बेड, उनको कोई भी किसी तरह का कोई मदद नहीं मिली, कोई आराम नहीं मिला उस बेड पे। He complained that his heavy body sank into it as into a hammock, और उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी जो है इसमें जो है बिल्कुल पूरी तरह से अंदर धंस गई है, जिस तरह से एक जो होता है हैमॉक में धंस जाती है। हैमॉक क्या होता है? हैमॉक एक तरह का नेट होता है जो कि बांधा जाता है, और स्विमिंग बेड काउच मेड ऑफ नेट है ना, वो बेड जो होता है वो बांधा जाता है। हाँ ओके, कहाँ था हमें? एंड दैट द स्ट्रिंग्स कट हिम इनटू, और जो स्ट्रिंग्स हैं वो उसके कमर में चुभ रही थी। दैट ही कुड नॉट टर्न ऑन द वुबलिंग नेट इन विच ही वॉज कॉट, और वो उसमें से उस नेट को नहीं बदल पा रहे थे जिसमें कि वो फंस गए थे। और उनको ऐसा लग रहा था जिस तरह की कोई नेट में जो मछली फंस जाती है, तड़पती है, तो उसी तरह से वो अपने आप को महसूस कर रहे थे। दोनों ही जो है हवा के लिए तड़पती रहती हैं। इट वॉज नो कूलर, ऊपर जाके भी उनको भी कोई ठंड महसूस नहीं हो रही थी। देन इट हैड बीन इंडोर्स, जैसा कि अंदर था। ही कंप्लेन देयर वॉज नॉट अ स्लाइटेस्ट ब्रीज, उन्होंने कंप्लेन किया कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। एंड डस्ट वॉज स्टाइफलिंग, और डस्ट जो है बिल्कुल गला घोटने वाली है। Ortima soon lost the light-heartedness that had come to her with this unaccustomed change of scene, और धीरे ही जो है जल्द ही और ऑटिमा जो है जो थोड़ा सी खुशी हुई थी, चेंज हुआ था उनके नेचर में कि वो ऊपर आई थी, उससे वो बदल गए, वो चेंज हो गए। शी टायर्ड ऑफ ड्रैगिंग अराउंड द पिलोज एंड पाइलिंग अप द बोल्स, वो थक गई थी तकिए मसंद को ऊपर लाने में और उनको सिटिंग पोजीशन में बिठाने में। तो देन पुटिंग हिम इनटू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ब्रिंगिंग हिम सम मेडिसिन एंड सो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करने में, दवाइयाँ लाने में, बहुत सारी चीज़ें करने, फैनिंग हिम, और उनके लिए पंखा कर रही थी। फाइनली शी गेव अप एंड कोलैप्स्ड ऑनटू हर ओन बेड, ऑन स्ट्रिंग बेड, और धीरे से वो जल्द ही वो भी थक हार कर चूर हो गई और अपने बेड पे जाके लेट गई। लाइंग देयर एग्जॉस्टेड एंड स्लीपलेस, और वो बिल्कुल थकी हुई और आंखों में नींद के बिना भी वो लेट गई। टू डिस्ट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ ट्रैफिक टू स्लीप, और ट्रैफिक की आवाज़ से उनको नींद नहीं आ रही थी। ऑल थ्रू द नाइट हर हस्बैंड मोन्ड एंड गास्प्ड, पूरी रात उनके जो हस्बैंड हैं वो गास्प करते रहे, वो उसके लिए मांगते रहे कि थोड़ा बहुत उनको मिल जाए हवा। टुवर्ड्स dawn it was so bad that she had to get up and massage his chest, सुबह आते आते उनकी तबीयत इतनी नासाज हो गई कि उनको जो उनकी छाती पे मसाज करनी पड़ी। When done long and patiently enough it seemed to relieve him, जब उन्होंने काफ़ी देर तक उनकी छाती पे मसाज की तो उनको थोड़ा सा इससे रिलैक्स महसूस हुआ।
नाउ लाई डाउन फॉर अ वाइल, अब जो है तुम लेट जाओ। आई विल गो एंड गेट सम आइस्ड वाटर फॉर योर हेड, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी, ठंडा पानी, आइस वाटर, ठंडा पानी लेके आता हूँ तुम्हारे सर के लिए। शी सेड, लोअरिंग हिम ऑन टू द बेड, उनको दोबारा से बेड पे लेटाते हुए वो नीचे चली गई। हर आइज ड्रॉप्ड हैवी बैग्स हेल्ड द टायर्डनेस अंडर, और उनकी आंखें जो है काफ़ी भारी हो गई थी क्योंकि पूरी रात वो सोए नहीं थे। टू हर सरप्राइज देयर वाज लाइट ऑन इन देयर फ्लैट, जैसे ही वो नीचे पहुंची तो वो बहुत ही जल्दी सरप्राइज हो गई कि लाइट आ गई है। देन शी हर्ड द टिकिंग ऑफ द फैन, और जो है पंखे के चलने की आवाज़ आ रही थी। शी हैड फॉरगॉटन टू टर्न इट ऑफ, वो उसको ऑफ करना भूल गए थे, बंद करना भूल गए थे। व्हेन दे वेंट अप टू द टेरेस, जब वो कल शाम को ऊपर गए थे। इट सीम्ड दैट द इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन स्विच्ड ऑन अगेन अर्लियर देन दे हैड एक्सपेक्टेड, और उनको लगा कि इस बार बिजली जो है 6 बजे से पहले ही आ गई है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था या नहीं था। द रिलीफ ऑफ इट ब्रॉट हर एनर्जी बैक इन द बाउंड, ये जानकर उनको बहुत ज़्यादा दोबारा से एनर्जी आ गई और शी बसल्ड अप द स्टेज, वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई। आई ब्रिंग हिम डाउन, ये सोच गए कि वो अपने पति को नीचे ले आएंगी। ही विल गेट सम आवर्स ऑफ स्लीप आफ्टर ऑल, और इससे उनको कुछ घंटे की नींद आ जाएगी। शी टोल्ड हर सेल्फ, उसने ये बात अपने आप को कही। इट्स ऑल राइट, अब ठीक है। शी कॉल्ड आउट एंड शी वेंट अप टू द टेरेस अगेन, और वो ऊपर छत पे चली गई। द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन अगेन, बिजली आ गई है। कम आई विल हेल्प यू डाउन, आओ मैं तुम्हें नीचे लेके चलती हूँ। यू विल गेट सम स्लीप, तुम्हें थोड़ी नींद आ जाएगी। इन योर ओन बेड आफ्टर ऑल, अपने ही बेड पे। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ही रिप्लाइड क्वाइट जेंटली, धीरे से उन्होंने ये बात कही। वाई क्यों? शी क्राइड, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊँगी। यू कैन गेट इन टू योर ओन बेड, यू विल बी क्वाइट कम्फर्टेबल, तुम नीचे चल के अपने बेड पे सो पाओगे, वहाँ पे ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाओगे। लीव मी अलोन, ही सेड अगैन इन दैट स्टिल वॉइस, इट इज़ कूल नाउ, मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि अब जो है ऊपर ठंडक हो गई है। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। मॉर्निंग हैड स्टर्ड अप सम ब्रीज, सुबह होते होते थोड़ी हवा चलने लग गई थी। ऑफ द स्लगिश रिवर यमुना बीनीथ द सिटी वॉल्स, जो उसके पास से यमुना बहती थी, वहाँ से जो है हवा जो है इस शहर की तरफ बहने लग गई थी। इट वॉज कैरिड ओवर द रूफ टॉप ऑफ द स्टाइफल सिटी, और हर एक की छतों से ऊपर से होते हुए जो है उनके घर तक पहुँच रही थी। पेल एंड फ्रेश एंड डेलिकेट, इट ब्रॉट विद इट द मॉर्निंग लाइट, और इसके साथ सुबह की रोशनी भी हो गई थी। एज डेलिकेट एज स्वीट, और काफ़ी कमज़ोर तो नाजुक और बिल्कुल मीठी हवा चल रही थी। अब प्योर पैलर अनलाइक द लिविड ग्लो ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, एक खूबसूरत रोशनी का माहौल हो गया था। दिस लिफ्टेड हायर एंड हायर इनटू द डोम ऑफ द स्काई, और सूरज जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। डाइल्यूटिंग द डार्कनेस देयर टिल इट, और धीरे धीरे जो है डार्कनेस ख़त्म हो रही थी और रोशनी से दिन चढ़ रहा था। ब्लू पील एंड ग्रेजुअली शेड्स ऑफ ब्लू एंड मॉव टिंटेड इट टाइट। द ओल्ड मैन ले फ्लैट एंड स्टिल, और जो बूढ़ा आदमी है वो चुपचाप लेटा रहा। स्टिल गेजिंग अप, वो ऊपर देख रहा था। हिज माउथ हैंगिंग ऊपर, उनका मुंह खुला हुआ था। एज इफ टू लेट इट पोर इनटू हिम, ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कुछ उनके मुंह में गिर जाए। अ कूल एंड फ्रेश एज वाटर। देन विद द वर्ल्ड swirl of flutter of feathers, उसके बाद क्या हो गया, कुछ कबूतर, a flock of pigeons उड़ के गए। hurled upwards and spread out against the dome of the sky, और जो स्काई के पे जाके उड़ने लगे, लहराने लगे। और pleasant sunlight like small pearls, और जो है जो सनलाइट जो है मोतियों की जैसे पर्ल्स की तरह लग रही थी। caught the light as they rose, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो वो रोशनी में आने लगे। टर्न ब्राइटर, और वो जो है और ज़्यादा रोशन होने लगे। टिल दे टर्न एट इनटू क्रिस्टल, और एक पॉइंट पे वो एक क्रिस्टल के रूप में बदले इनटू प्रिज्म ऑफ लाइट, और उनमें से लाइट निकलने लगी। देन दे डिसअपीयर्ड इनटू द सॉफ्ट डीप ब्लू इन द मॉर्निंग, और वो इस तरह से एक रोशनी में एक नई सुबह में गायब हो गए। तो ये जो चैप्टर है ये आपको मिस्टर एंड मिसेस बासु के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता है,
उनकी एक रात के बारे में बताता है, किस तरह से ये उन्होंने रात बड़ी मुश्किल में काटी और किस तरह से मिसेस बासु जो एक बहुत ही हेल्पिंग वाइफ है, केयरिंग वाइफ, उन्होंने अपने पति के लिए क्या क्या काम किए. सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेल मी what are the things done by Mrs. Otema Basu to make her husband comfortable. Second question, when she comes back at her house in the morning, what makes her so happy? जब वो सुबह अपने कमरे में आती है तो क्या देखकर वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है. So and why Mr. Basu starts crying when he goes upstairs and what makes him cry. ये 3 क्वेश्चन है बच्चे. आई रिक्वेस्ट यू टू आंसर दिस 3 क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.